स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम सर, बायोसाइंस वाला। Under the useful and harmful macros, I bring one of the important video today for you. Before starting video, I want to request to you, if you have not subscribed our channel, please subscribe it to get the more information and updates of my videos. Students, in the previous video we have seen about use of lactobacillus and how the lactobacillus is useful for us. Now it is the series of the organism which are useful for us. After lactobacillus, today we are studying rhizobium. Students, rhizobium क्या है? Rhizobium is a type of bacteria, is the symbiotic type of bacteria. Symbiotic type of bacteria. यहां मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि व्हाट इज मीन बाय symbiotic. Symbiotic means what? It gives us the relation between symbiosis. It is the relation between two organisms which are mutually benefited to each other. Which are beneficially, benefited to each other. So here two organisms are mutually benefited for what? Rhizobium, we know very well, it is bacteria. It is bacteria and it shows the symbiotic type of relationship with plants. ये plants के साथ एक symbiotic relationship दिखाता है. वो symbiotic relationship क्या है? जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं. दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं. तो यहां पर राइजोबियम जो है ये क्या कर रहा है? ये किसी एक प्लांट के को होस्ट बनाता है. स्पेशली ये कौन से प्लांट्स को होस्ट बनाता है? स्पेशली ये लीगोमिनस प्लांट्स को होस्ट बनाता है. लीगोमिनस प्लांट्स. ये प्लांट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर लिग्यूम बनती है. लिग्यूम कहते हैं अपन दाल को, बीन्स को. लिग्यूम हम कहते हैं बीन्स को. तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें बीन्स होती है, उनको हम लिग्यूम्स कहते हैं. जैसे सोयाबीन है ना. तो जो लिग्यूमिनेटेड प्लांट होते हैं उसको हम बीन्स कहते हैं, इसको हम लिग्यूम कहते हैं. अब ये प्लांट्स के अंदर जो है स्पेशली यही प्लांट्स को होस्ट क्यों बनाती है ये बैक्टीरिया? बहुत अच्छी चीज है, ये हमको समझने में मदद मिल रही है कि यही बैक्टीरिया ये प्लांट्स को क्यों होस्ट बनाते हैं. ये होस्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये प्लांट्स फ्रूट्स होती है, वो इस तरह से होती है, उनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे गांठें होती हैं, उसको हम नोड्यूल्स कहते हैं. और ये नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया आकर अपना ग्रोथ करते हैं और वहां पर ये रहते हैं. अब बैक्टीरिया यहां पर प्लांट से क्या बेनिफिट ले रहे हैं? दे यूज प्लांट एज होस्ट. प्लांट से एनर्जी ले रहे हैं, उसके सेल को यूज कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, उसके फूड के यूज कर रहे हैं. दूसरा, अब ये क्या बेनिफिट करके दे रहे हैं प्लांट्स को? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए. नाइट्रोजन फिक्सेशन. इट इज वेरी वेरी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया. ये राइजोबियम बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है कि हम जानते हैं देयर इज
78% nitrogen in the atmosphere. But in the biomass of the living organism, it is present in the protein, and it is very, very important for the protein formation. So how this nitrogen we get? We get this nitrogen from the plant. And how the plant is synthesize this protein? They synthesize protein with the help of this nitrogen, which is fixed by the rhizobium bacteria. These rhizobium bacteria help the plants in the formation of the protein. Means they reach the nitrogen, atmospheric nitrogen. They convert the nitrogen into nitrate and nitrites compound. So this fixation of the nitrogen from the atmosphere in the soil, and from soil this nitrogen is absorbed by in the bacteria. Through the bacteria, atmospheric nitrogen is fixed by the bacteria in the root nodules, and this nitrogen is utilized by plants for the production of the formation of the protein. So this is called as the biological fixation. It is one of the important biological process which is incomplete without the rhizobium bacteria. So we are studying rhizobium as useful for our life and useful for organisms. So it is the symbiotic relationship between the rhizobium bacteria and the leguminous plant. I hope that students you understand this. Now after this, in your textbooks one of the important activities given, that is under let's try this. Now students, we will see what is meant by this activity and what we can understand from this activity. Let's try this. ये आपको कहा जा रहा है कि ये ट्राई कीजिए. अब क्या ट्राई करना है हमको? तो इसलिए हमको क्या क्या लगेगा इस एक्टिविटी के लिए? सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं. हमको एक लिग्यूमिनस प्लांट की रूट लगेगी. कौन सी रूट लगेगी स्टूडेंट्स? जिस पर इस तरह से रूट नोड्यूल्स हो. तो ये हम ला सकते हैं, हम पूरा होल प्लांट भी ला सकते हैं फेनोग्रीक का, या सोयाबीन की रूट ला सकते हैं, और दूसरी जो भी पल्सेस वगैरह हैं जिसमें दालें होती हैं, जिसमें फलियां होती है, लिग्यूम यानी फली होती फलियां होती है, उससे हम उसकी रूट में जो है इस तरह की गांठें आपको दिखाई देंगी. ये गांठों को हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं. ये रूट नोड्यूल्स लगे हुए होना उसके ऊपर. तो ये स्पेसिमेंस के तौर पे हम ये लाएंगे. इसके बाद हमको लगेगा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 to 5% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये केमिकल लगेगा हमको. इसी तरह से हमको लगेगा इथिल अल्कोहल 70% सॉल्यूशन ऑफ इथिल अल्कोहल. ये हमारे रिक्वायरमेंट है. ठीक है. इसी तरह से हमको लगेगा डिस्टिल वाटर, सादा पानी भी ले सकते हैं उसको. हमको स्टेन करने के लिए डिस्टिल लगेगा, दैट इज सैफ्रोनिन. ये पिंक कलर का एक सॉल्यूशन होता है जो हम स्टेन करने के लिए यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये कुछ चीजें हैं जो हमको लगेंगी. इसी के साथ साथ हमको लगेंगी ग्लास स्लाइड्स, कवर स्लिप, इस तरह से ये कुछ चीजें लगेगी. और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब चीजें हमको लगेंगी स्टूडेंट्स हमको एक्टिविटी करने के लिए. एक्टिविटी क्या है? यस, अंडर दिस हेडिंग दैट इज ट्राई दिस. अब ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं ये आपके समझ में आ जाएगा. इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं
कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं, ल्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, रूट नोडल्स क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमको क्या क्या लग रहा है, देखिए एक प्लांट लेंगे, हम एक स्पेसिमेन लेंगे, ल्यूमिनस प्लांट लेंगे, कोई भी हो सकता है वो, जिसकी रूट नोडल्स होंगी, जिस पर रूट के ऊपर बारीक बारीक गांठें होंगी, वो प्लांट हमको लेना है। हमको 3 से 5% जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन लगेगा, उसको स्टरलाइज करने के लिए यानी उसको धोने के लिए, अच्छे से क्लीन करने के लिए। फिर उसकी अल्कोहल लगेगा हमको 70% सॉल्यूशन ऑफ इथिल अल्कोहल। फिर उसके बाद हमको वाटर लगेगा। फिर उसके ऊपर हम जो है सेफ्रेनिन डालेंगे, और सेफ्रेनिन कैसे डालते हैं मैं आपको बताऊंगा। और कवर स्लिप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक छोटा सा ब्रश और एक नीडल हमको लगती है और एक ब्लेड लगती है, ताकि हमको जो है अच्छे से अच्छे फाइन जो है सेक्शन, इसकी जो रूट नोडल्स की सेक्शन हासिल हो जाए। जितने फाइन सेक्शन हम लेते हैं उतने अच्छे से हमको जो है सेक्शन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है, और वो हम जो है इसको उसकी जो है स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं, उसके सेल्स को, उसके टिश्यूज को हम पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक फेनोग्रीक या ग्राउंडनट या और कोई बीन प्लांट्स लेंगे, उसको उसकी रूट लेंगे, उसको 3 से 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन में डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको 75% सॉल्यूशन में डालेंगे। 75% सॉल्यूशन किसका, एथिल अल्कोहल का। इसको 4 से 5 मिनट उसमें रहने देंगे। उसके बाद उसमें से निकालेंगे, उसको पानी से धोएंगे। कैसे धोएंगे, पानी से। फिर उसको हम एक ग्लास स्लाइड पर, ये सेक्शन को पूरा ऐसा ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, और ग्लास स्लाइड पर रखने के बाद उसको काटेंगे। काटने के बाद उसके बारीक बारीक सेक्शन लेंगे, और आपको बहुत सारे सेक्शन लेना है। वो सेक्शन को जो है हम एक सॉल्यूशन में डालेंगे, उसका नाम क्या है, सेफ्रेनिन। ये सेफ्रेनिन के अंदर डालने के बाद उसको स्टेन हो जाएगा, स्टेन कहते हैं डाई करने को, यानी कलर हो जाएगा, कलर सेक्शन हो जाएगा। अब वो कलर सेक्शन हो जाएगा, फिर उसको जो है सेफ्रेनिन को सेक्शन को जो है हम लेंगे और 2 से 3 मिनट तक रखेंगे। फिर उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर लेंगे। ग्लास स्लाइड के ऊपर लेने के बाद जो है इसके ऊपर कवर स्लिप रख देंगे। कवर स्लिप रखने के बाद इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो आपको क्या दिखाई देता है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि वो जो सेक्शन आपने लिया था उसके अंदर पिंकिश कलर के, पिंक कलर के रॉड शेप ऐसे बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोबियम। तो ये एक्टिविटीज हमने क्या समझा स्टूडेंट्स, के सेक्शन से हम किस तरह से बैक्टीरिया को देख सकते हैं, और रूट नोडल से किस तरह से बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो आई होप दैट दिस एक्टिविटी, you like this activity, and you will try in your laboratory of the school, and you will observe through your naked eyes under the microscope. Students, इस वीडियो में हम रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम पढ़ने जा रहे हैं। राइजोबियम का क्या रोल है, उसकी अहमियत क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। इट इज ए टाइप ऑफ lactobacillus type of bacteria. It is bacillus type of bacteria. It is rod shaped bacteria. What is its role? It play a very important role as biofertilizers and also in the fixation of the nitrogen. सबसे पहले तो हम फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है ये समझेंगे। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सेंस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक बड़ा बायोमास है प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। और प्रोटीन जो बनी होती है ये नाइट्रोजन से बनी होती है, और नाइट्रोजन जो है ये 78% एटमॉस्फेयर में है।
अब प्लांट्स के जैसे तो एक्सचेंज जो प्लांट्स में होता है, ऑक्सीजन प्लांट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एटमॉस्फेयर को देते हैं, हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन, वैसे एक्सचेंज ऑफ द नाइट्रोजन नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। फिर अब ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में? तो नाइट्रोजन की ये जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और इस जैसे दूसरे बैक्टीरिया भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। तो यहां हम सिर्फ अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो राइजोबियम के कर रहे हैं, रोल उसका देख रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं। तो फिक्सेशन नाइट्रोजन का जो होता है ये प्रोटीन बनाने के लिए होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है नाइट्राइट, नाइट्रेट्स और अमीनो एसिड्स, these कंपाउंड्स को जो है ये अवेलेबल करके देता है नाइट्रोजन राइजोबियम प्लांट्स के लिए। फिर प्लांट उसको यूटिलाइज करते हैं और प्रोटीन की तैयारी में उसमें की नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह का होता है, आपने पढ़े होंगे, एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन और एक होता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। तो जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन है वो बैक्टीरिया के जरिए से होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से होता है, इसलिए उसको बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो प्लांट्स को क्या चाहिए स्टूडेंट्स? प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन और राइजोबियम को क्या चाहिए? एक अच्छा होस्ट जिससे ये अपनी रिक्वायरमेंट, अपने फूड न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी हासिल करे। तो इसके लिए सबसे स्पेसिफिक जगह जो होती है राइजोबियम के लिए वो प्लांट्स की रूट होती है। प्लांट्स की रूट में ये जाकर जो है उसके सेल के अंदर जाके बैठ जाते हैं, वहां ग्रोथ करते हैं और इस तरह के नोड्यूल्स बनाते हैं। वो नोड्यूल्स में जो है बैक्टीरिया जो है ग्रो होते हैं। अब ये बैक्टीरिया ग्रोथ तो होती है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ यहां क्या होता है, ये होस्ट के तौर पर प्लांट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्लांट को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, लेकिन प्लांट्स को ये क्या कर रहे हैं, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमीनो एसिड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फिक्सेशन करके दे रहे हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड का फिक्सेशन करके दे रहे हैं। तो इट अवेलेबल फॉर दी ऑल प्लांट्स। विच टाइप ऑफ प्लांट्स? ओनली फॉर लिग्यूमिनस प्लांट्स। वो प्लांट जिसमें फलियां होती है, जिनमें दालें होती है, उनको हम लिग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, उनको हम लिग्यूम प्लांट कहते हैं। लिग्यूम को कहते हैं फली को, लिग्यूम हम किसे कहते हैं? फली को कहते हैं। तो इस तरह से ये जो अवेलेबिलिटी है प्लांट्स के लिए नाइट्रोजिनस कंपाउंड की, और ये जो अवेलेबिलिटी है बैक्टीरिया के लिए रूट नोड्यूल्स की, ये एक रिलेशनशिप इनके अंदर कर देती है। उस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? वो रिलेशनशिप होती है जिसमें होस्ट और जो ऑर्गेनिज्म है इनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जिसमें वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो यहां बेनिफिशियल क्या है, दोनों को बेनिफिट्स क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ये जो फिक्सेशन होता है स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स के लिए और स्पेशली बीन्स और पल्सेस के लिए जो है प्रोटीन अवेलेबल करके देता है, या उसमें प्रोटीन अवेलेबल होती है, और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सोर्स होता है प्रोटीन का। प्लांट ही हमारे लिए प्रोटीन का सोर्स होता है, दूसरी कोई चीज हमारे लिए प्रोटीन का सोर्स नहीं है। तो प्लांट से हम लेते हैं, प्लांट्स किस तरह से इसको तैयार करते हैं ये हमने देखा है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यही जो राइजोबियम है ये हमारे लिए एक बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर है। वी कैन यूज इट एज ए बायो फर्टिलाइजर, एक बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर है। हम जानते हैं कि जो फार्मिंग हो रही है अभी, फार्मिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है
ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं जिससे इरोजन ऑफ सॉइल हो रहा है, जिससे पॉल्यूशन ऑफ सॉइल हो रहा है, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जो कंटामिनेशन हो रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है हमने किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, बायो फर्टिलाइजर्स का। तो यही इंपॉर्टेंस हमारे लिए राइजोबियम की है कि वी कैन यूज इट एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो जब हम ये पल्सेस या लिग्यूम प्लांट्स या इनकी जो फसलें रहती हैं, इसकी हार्वेस्टिंग के बाद इसकी जो रूट है, इसकी जो लीफ है और इसके जो रेसिड्यूज है, इसको बाकायदा हम जो है एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। इसका अच्छा ऑर्गेनिक फार्म तैयार कर सकते हैं और ऑर्गेनिक जो है मैन्योर तैयार कर सकते हैं, जिसके जरिए से हम इसको दोबारा सॉइल में यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, दे हेल्प इन द ये ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, दे हेल्प इन द इनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। किसका इनरिचमेंट, इनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर जो है ये न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, दे अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स फॉर द क्रॉप्स के लिए ये न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करके देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइजोबियम इज यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये राइजोबियम का काम होता है। राइजोबियम जो इसको बायो फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम कर सकते हैं और बहुत सारी जो राइजोबियम की जो स्पीसीज है हम इसको इस्तेमाल, लेकिन राइजोबियम की खास बात क्या है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन द ल्यूकोमिनस प्लांट। ये सिर्फ ल्यूकोमिनस प्लांट को ही यूज करते हैं, दूसरे कोई प्लांट की रूट नोडल्स में आपको नजर नहीं आएंगे। तो भी हमको भी ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग किसकी करना चाहिए, ल्यूकोमिनस प्लांट की करना चाहिए। क्यों, इसलिए कि इससे हमारे सॉइल की जो है फर्टिलिटी बढ़ेगी। नाउ आफ्टर दिस स्टूडेंट्स we are seeing one of the important methods or the technique which is now used, that is rhizobial inoculation। ये टेक्निक क्या है, ये टेक्निक में क्या किया जाता है कि जो सीड होते हैं, कौन से सीड होते हैं, नॉन ल्यूकोमिनस प्लांट के, कौन से सीड होते हैं, नॉन ल्यूकोमिनस प्लांट्स के सीड होते हैं जिनकी रूट में जो है नोडल्स नहीं बनते हैं या जिनको बैक्टीरिया होस्ट नहीं कर पाते, तो उनके सीड लिए जाते हैं, क्योंकि उनको भी नाइट्रोजन की जरूरत है ना, उनको भी नाइट्रोजन अवेलेबल करना है। तो उनको हम नाइट्रोजन कैसे अवेलेबल करके देते हैं, उनको हम रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ऑर्गेनिक जो है मैन्योर वगैरह ये सप्लाई करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स ये सप्लाई करते हैं। तो जब जाकर उनको नाइट्रोजन मिलती है, जब जाकर उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। लेकिन प्रीवियस ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि ऐसे प्लांट की सीड लेते हैं और वो सीड को हम क्या करते हैं, राइजोबियल जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया के पानी में डालते हैं या उसके पाउडर की डस्टिंग करते हैं वो सीड के कोट पर। वो सीड के कोट पर जब ये डस्टिंग हो जाती है या इनको कुछ दिनों के लिए हम या सोल्यूशन में रख देते हैं, राइजोबियल सोल्यूशन में रख देते हैं, तो वो सीड जो है फिर उसको पेरा जाता है, उसको सोइंग किया जाता है। सोइंग करने के बाद जो है वो बैक्टीरिया वो सीड के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल करके देते हैं और इस तरह से उनको भी जो है बैक्टीरिया नॉन ल्यूकोमिनस प्लांट के लिए भी ये बेनिफिशियल साबित होते हैं। यही वो इंपॉर्टेंट रोल है राइजोबियम का जो हमने देखा है। आई होप दैट स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, दैट इज रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम एज इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, as the biofertilizer and as the rhizobial inoculation as a new method or new technique